Hello students, in today's video we are going to learn class 11 English का lesson number 4.2 which is taken from your drama section. Fourth section is drama section, so this is one of the drama. 4.2 name of the drama is The Rising of the Moon. It is written by Lady Gregory. Okay, Rising of the Moon, this drama is written by Lady Gregory. The Rising of the Moon is an Irish ballad recounting a battle between the United Irishmen and the British Army during the Irish Rebellion of 1798. अभी अगर आपको पता होगा कि जैसे इंडिया भी कभी गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तो इवन आयरलैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. उनके आयरलैंड पे भी ब्रिटिश लोगों ने रूल किया था. तो जब भी ये बगावत चल रही थी कि अपने आयरलैंड को फ्री करना है, आयरिश लोग जो हैं वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से अपने आप को फ्री करने के लिए, तो ये जो ड्रामा की स्टोरी है इट इज़ ऑफ दैट टाइम. नाउ दिस ड्रामा इज़ क्वाइट big to read, so students I will request you to read it from the textbook, but I will give you the summary. I will explain the whole drama so that it becomes easier for you to attempt the questions or activities related to that. But whenever you get time, do read this, because if I keep reading, video will become very long, but definitely I will try to cover up all the points. So this story is, I told you, from the time when the Ireland was under the clutches of Britishers. Let me tell you about this play, about this drama. क्या है? The Rising of the Moon is a play by Augusta Lady Gregory. As I told you, it is a political play which examines Anglo-Irish relations. It was first produced on March 9, 1907 by Irish National Theatre. ये जो ड्रामा है पहली बार 9 मार्च 1907 में आयरिश के नेशनल थिएटर में प्रेजेंट किया था. लेडी ग्रेगोरीज द राइजिंग ऑफ द मून इज़ एन एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल प्ले डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड ट्राइंग टू फाइट फॉर द फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश रूल. जैसे मैंने बताया, वो उनको इंग्लिश मैन से, ब्रिटिशर्स से आयरलैंड को फ्री कराना था. द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश डोमिनेशन ऑफ आयरलैंड इज़ अ वेरी लॉन्ग. Lady Gregory presents characters who are torn between duty and patriotism and are ultimately united together as Irishmen through the folklore, myths and the songs which they share as a nation. अभी कुछ जो आयरिश लोग थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए थे. उनको नौकरी चाहिए थी, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे, तो उनको अपनी ड्यूटी भी करनी थी, बिकॉज दे वर वर्किंग अंडर द ब्रिटिशर्स. बट उनको देशभक्ति की भी भावना आ रही थी, पैट्रियोटिज़म. तो वो दोनों के बीच में फ़ाइट कर रहे थे, ड्यूटी करें कि पैट्रियोटिज़म को देखें, अपने देश को देखें. तो उसमें वो दिखाया है कि आयरिश मैन का जो सॉन्ग्स हैं, नेशनल सॉन्ग्स यू कैन से, फोकलोर, मिथ्स जो भी है, वो सब उन्होंने शेयर किया है. तो कैसे उनके मन में पैट्रियोटिज़म आ जाती है, देशभक्ति का गीत गाते हैं. तो द थॉट ऑफ बीइंग द सिटीजन ऑफ अ कंट्री टेक्स प्रेसिडेंस ओवर दी वंस फीलिंग ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स अ फॉरेन नेशन. अभी अगर वो फॉरेनर के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, बट फिर भी जब भी अपने कंट्री की पैट्रियोटिज़म याद आती, जब भी वो गाने गाते हैं, तो वो उनको जो है प्रेसिड कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है. वो फीलिंग जो देशभक्ति के उनके अंदर में आ जाती है, वो ड्यूटी को ओवरकम करती है. ड्यूटी बाद में, पहले पैट्रियोटिज़म उनको याद आती है. सो पैट्रियोटिज़म इज़ द यूनिफाइंग फोर्स अमंग द पीपल. तो उसके ऊपर किया गया है ये स्टोरी. Then let me tell you about the themes and characters. Theme क्या है? First we notice theme of inversion in social norms. Second, Lady Gregory acknowledges the importance of loyalty in Irish nationalism and explores the tension between different loyalties. अभी ये जो है कि आयरिश लोगों की नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने दिखाया है, एक्नॉलेजमेंट दिया है. Lastly, the tension between law and nation are highlighted. The play shows that harmony can be found in the midst of great tensions and promotes songs and community as the way to achieve harmony in new Irish nationalism. The play has a simple structure, is only very few pages long and has only 4 characters. 4 character है. Sergeant stands for what is good, law and order and the old English way. The ragged man stands for the bad rebellion and the new Irish way. सो 4 जो कैरेक्टर्स हैं, लेट मी टेल यू. एक है सार्जेंट,
लिखने में हम ऐसे लिखते हैं, लेट मी टेल यू, इट इज़ रेड इट एज सार्जेंट। सार्जेंट क्या होता है कि आर्मी में जो हायर पोस्ट पे रहता है, हायर रैंकिंग ऑफिसर, उसको बोलते हैं सार्जेंट। ब्रिटिश आर्मी में ये एम्प्लॉयड था ये आयरिश पर्सन, बट क्या था, ही वॉज नाउ वर्किंग अंडर ब्रिटिश आर्मी, तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर दिखाया है 2 पुलिस ऑफिसर्स, देन एक रैग्ड मैन यानी फटे पुराने कपड़े में एक आदमी दिखाया है। तो सार्जेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है, रैग्ड मैन जो है फटे पुराने वो एक दिखाता है, रिबेल दिखाता है, क्रांतिकारी दिखाया गया है। तो ऐसे चारों कैरेक्टर के ऊपर ये पूरा ड्रामा है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द ड्रामा। अभी स्टोरी जो है, ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ लेट इवनिंग टाइम व्हेन मून हैज़ रिजन। आसमान में एकदम मून आ गया है, लेट इवनिंग का टाइम है। और प्लेस क्या दिखाया है, आयरिश वाफ। आयरिश जो सी है, सी के बाजू में जो कोस्ट होता है, कोस्ट पे जैसे स्टेयरकेस बना हुआ है, बैठने की जगह बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं वाफ। तो आयरिश सी जो है उसके बाजू में जो जगह बनी हुई है सी कोस्ट के, यहाँ पे लैडर्स वगैरह सीढ़ियाँ बैठने, तो वहाँ की ये जगह है। और टाइम क्या हुआ है, लेट इवनिंग। तभी क्या हो रहा है कि 2 पुलिसमैन, वन पुलिसमैन एक्स एंड अदर पुलिसमैन बी, वो क्या लगा रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं। दे आर स्टिकिंग प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स। उस पे पोस्टर्स पे क्या लिखा हुआ है कि एक जो है आयरिश क्रांतिकारी रिबेल, उसने क्या किया है, उसको जेल में डाला था। अभी आज जैसे मैंने बताया कि आयरिश लोग लड़ रहे थे अपने देश को आज़ाद करने के लिए। सो एक आयरिश मैन था जिसको जेल में डाला गया था, बट वो जेल से भाग गया था। तो अभी ब्रिटिश आर्मी ने उसके ऊपर रिवॉर्ड लगाया था कि अगर वो रिबेल को, आयरिश रिबेल को जो ढूंढ के लाएगा, उसको 100 पाउंड रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो उसके जो पोस्टर्स हैं, 2 पुलिस वाले जो हैं वो लगा रहे थे, कहाँ पे, सी वार्फ पे, जैसे मैंने बताया सी कोस्ट के यहाँ पे वो पोस्टर्स लगा रहे थे। और वो आदमी के लिए उस पर लिखा था कि वो डार्क स्किन है, डार्क आइज़ है, स्मूथ स्किन है, हाइट उसकी 5 फुट 5 इंचेस है, ऐसे करके उनको पोस्टर्स लगा रहे थे। अभी दीज वर 2 पुलिस ऑफिसर्स। इनके ऊपर जो हायर रैंक का था ऑफिसर, सार्जेंट जिसको बोल सकते हो, पुलिसमैन के जो हायर रैंक में है सार्जेंट, ये भी वहाँ पे खड़ा था इन दोनों के साथ। एंड वो उनको बोलता है कि आप इधर मत लगाओ अभी पोस्टर, दूसरे जगह पे भी जाके लगाओ, यहाँ पे खड़े मत रहो, तुम कहीं और जाओ और मैं इधर अकेले ही खड़ा रहूँगा, और तुम लैंटन भी लेके जाओ। रात का टाइम था तो ये लोग लैंटन लेके आए थे और पोस्टर्स लगाते। उसने बोला बस अभी इधर हो गया, तुम और किधर जाओ और उधर जाके लगाओ, लैंटन भी लेके जाओ, मैं यहाँ पे अकेले ही खड़ा रहूँगा। एक्चुअली सार्जेंट को पता चल गया था कि वो जो रिबेल है वो जेल में से भाग के निकला है, और उसके जो और रिबेल है फ्रेंड्स हैं वो सी के थ्रू आने वाले हैं उसको हेल्प करने के लिए, बोट में, शिप में आने वाले हैं, और वो शिप के तरह से सी वे से वो अपने फ्रेंड्स के साथ भाग के जाने वाला है। तो दे वर ऑल थिंकिंग कि वहीं पे हम खड़े रहे, अगर इसको पकड़ा गया तो 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा। और एक बात थी कि अगर ये ऑफिसर है तो इनको प्रमोशन मिल जाए, किसी ऑफिसर ने, आर्मी के ऑफिसर ने अगर इसको पकड़ा तो उसको प्रमोशन भी मिलेगा। तो सार्जेंट को क्या लग रहा था कि मैं गरीब हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा और 100 पाउंड भी मिल जाएगा। तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ कैचिंग दिस रिबेल अलोन। तो इनको दोनों को भगा देता है, पुलिस वालों को बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं अकेला इधर ड्यूटी पे रहूँगा, उसको पकड़ूंगा। तो वो दोनों चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जब भी वो ड्यूटी दे रहा था तो अचानक से उसने देखा कि एक रैग्ड मैन, रैग्ड पर्सन यानी जिसको फटे पुराने कपड़े पहने थे, वो एक आदमी आता है। तो ये सार्जेंट उसको बोलता है कि नो, यू आर नॉट सपोज टू एंटर दिस एरिया बिकॉज टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेबेल।
और उसको हम लोग पकड़ने वाले हैं, तो नोबडी इज़ सपोज टू एंटर दिस एरिया, वार्फ का जो एरिया, यहाँ पे तुम मत आओ, बिकॉज अवर लाइक कॉन्सेंट्रेशन विल बी डाइवर्टेड, हम बिजी हो जाएंगे दूसरों को कंट्रोल करने में, तो वी विल नॉट बी एबल टू कैच दैट रिबल, सो यू बेटर गो अवे फ्रॉम हियर। बट दिस पर्सन सेज नो, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ, एंड एवरी डे आई कम हियर एंड आई एम अ बैलेट सिंगर, यानी कि गाता हूँ मैं, वहाँ के जो सॉन्ग्स होते हैं वो मैं गाता हूँ। तो जो यहाँ पे वाफ पे आके कुछ लोग हैं जो आते जाते हैं, दे गिव मी मनी फॉर दिस सिंगिंग, तो आई अर्न माई लाइवलीहुड फ्रॉम दिस सिंगिंग ओनली। तो अगर आप मुझे अलाउ नहीं करोगे, इफ़ यू विल नॉट अलाउ मी टू सिंग हियर, आई विल नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न फ्रॉम माई थिंग, सो प्लीज़ अलाउ मी टू सिट हियर एंड सिंग। बट दिस ही जो सार्जेंट था, he says no, no ways, you cannot, you have to leave from this place, please don't divert me। तो जैसे ही वो भगाने की कोशिश कर रहा है, ये आदमी को जिसने अपना नाम बताया जिमी वाल्श, भगाने की कोशिश करता है, तो उसने एक पोस्टर देखा। कौन सा पोस्टर था? जो वो पुलिस वाले लगा के गए थे कि 100 पाउंड्स उसके ऊपर प्राइज़ है, रिवॉर्ड है। तो ये बोलता है कि मैंने तो उसको देखा है, ये जो आदमी है ना रेबल आयरिशमैन, मैं तो उसको पहचानता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पे है। तो अभी सार्जेंट को लगा रहे, अरे तू जा मत, तू जा मत, इधर बैठ, अभी मुझे बता, मुझे हेल्प कर इसको पकड़ने में। तो ये बोलता है कि नहीं बाबा, मैं तो हेल्प नहीं करूँगा उसको पकड़ने में। क्यों? क्योंकि वो जो रेबल है बहुत ख़तरनाक है। ही सेज वो जो रेबल है वो बहुत ख़तरनाक है, वो दिखने में एकदम डार्क डेंजरस मस्कुलर मैन है, और उसको हर तरह के वेपन्स चलाने आते हैं। और अभी जब ही जेल में गया था, उसके पहले ही थोड़े दिन पहले एक आदमी को सिर्फ पत्थर लेके भी मार दिया था। तो ही इज़ गुड एट किलिंग पीपल, ही इज़ वेरी डेंजरस पर्सन। तो मुझे वो पता है, पर फिर भी मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा आपको उसको पकड़ाने में, चाहे 100 पाउंड मुझे प्राइज़ में मिले। बट ये सार्जेंट उसको कन्विंस करता है, बोलता है नहीं, तुम इधर बैठो और तुम मुझे हेल्प करो। तो ये उधर वार्फ के इधर बैरल्स पड़े हुए थे, बैरल समझते ना, ड्रम टाइप से खाली। तो वहाँ पे इसको बोलता है कि तुम बैठ जाओ, हेल्प करो, मुझे बताओ। तो वो बैरल पे ये एक साइड फेस करके, ये साइड फेस करके बोलता है कि यहाँ से अगर वो आएगा तो तुम मुझे हेल्प करना, बताना। तो ये बैठ के उधर सिंगिंग कर रहा है। व्हाट इज़ ही सिंगिंग? अगेन बैलेट सिंगिंग, जो मैंने बताया, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहा है, और दे बोथ वर स्मोकिंग पाइप उधर बैठ के। तो ये उसको सार्जेंट बोलता है कि ये तुम पैट्रियोटिक सॉन्ग्स मत गाओ, आयरिश के, आयरलैंड के जो गाने हैं। तो ये बोलता है क्यों नहीं गाऊँ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आयरिश मैन। मुझे लगता है कि हमको अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोलता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ये गाना गा के। बट ये सुनता नहीं, बोलता नहीं, ये मुझे मोटिवेट करके रखता है, मैं गाऊँगा। तो व्हेन ही वॉज सिंगिंग दोज पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो उसने सार्जेंट ने नोटिस किया कि वो गलत गा रहा है। तो उसको बोलता है नहीं, तुम ये गाना ऐसे नहीं है, ऐसे है, या फिर ये लाइन तुमने मिस कर दिया। तो ये बोलता है कि अरे तुमको उसका मतलब क्या कि आयरलैंड का आयरिश सॉन्ग्स तुमको पता है, उसका मतलब तुम भी आयरिश मैन हो? बोलता है हाँ। तो तुमने भी बचपन में ऐसे सी शोर पे बैठ के ऐसे गाने गाए थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए थे? बोलता है हाँ, मैंने वेरी मच अपने दोस्तों के साथ गाए थे। तो हो सकता है कि वो जो रेबल है, जो क्रांतिकारी है, जो अभी जेल से भागा है, हो सकता है वो भी बचपन में मेरे साथ सी पे बैठ के मेरे साथ गाने गाए हों, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हों। तो ये बोलता है फिर तुमको ऐसे अच्छा नहीं लगता? तो ये बोलते हैं हाँ। तो लाइक ही बिकम्स इमोशनल, ही बिकम्स पैट्रियोटिक फॉर सम टाइम, इसके बातों में आ जाता है। बोलते हैं हाँ, अगर मैं भी ब्रिटिश आर्मी में नहीं जाता, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, इफ़ आई वॉज नॉट इन नीड ऑफ मनी एंड इफ़ इट वॉज पॉसिबल फॉर मी, इवन आई वुड हैव बिकम अ रिबेल, मैं भी आज रिबेल होता था, अपने देश के लिए लड़ता था। बट पैसों की ज़रूरत थी, इसके लिए मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो अभी कुछ भी हो जाए मैं ड्यूटी करूँगा, अपना पैट्रियोटिज़म बाद में, पहले तो मुझे क्या है, अपनी ड्यूटी करनी है, कि मुझे उसको पकड़ना है, मुझे फेथफुल रहना है अपनी ड्यूटी की तरफ। तो ये तभी कुछ सीटी की आवाज़ आती है और ये और ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है। तो ये सार्जेंट को हिंट मिल गया कि सी में से कोई बोट आ रही है और कुछ सीटी बज रही है और कुछ गा रहे हैं, और ये उनको डायरेक्शन दे रहा है, यानी यही वो आदमी है, यही वो रेबेल है जो जेल में से
जेल में से भाग के निकला है। तो उसको बोलते हैं अरे तुम वही हो, उसका मतलब, क्योंकि यहाँ से तुम अपने साथियों को बुला रहे हो, आई कैन मेक आउट। तो ये अपने विग निकालता है, हैट निकालता है, एंड ही सेज येस आई एम द पर्सन फॉर विच गवर्नमेंट हैज़ केप्ट 100 पाउंड रिवॉर्ड, मैं ही हूँ वो आदमी, बट प्लीज़ मुझे जाने दो। तो ये बोलता है नहीं, मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो जैसे ही ऐसे बोल रहा है तो वो जो 2 पुलिस ऑफिसर थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो पोस्टर लगा रहे थे, वो दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। तो वो दोनों पुलिस ऑफिसर जब भी आते हैं तो वे छुप जाता है, कौन, रैग्ड मैन जो है बैरल के पीछे छुप जाता है। अभी वो 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं तो ये सार्जेंट उनको बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए वापस, यू गो अवे, आई एम ओके हियर। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे अकेले ड्यूटी दे रहे हो और अंधेरा भी हो गया है। तो ही सेज नो, तुम लोग जाओ, मैं अकेले इधर कंफर्टेबल हूँ, आई विल डू माई ड्यूटी वेल, कुछ भी होगा मैं इसको पकड़ लूँगा, तुम पुलिस चौकी जाओ और किधर पोस्टर्स लगाओ, बट लीव मी अलोन हियर। और उनको दोनों पुलिस वालों को भगा देता है। तो बाद में ये जो है रैग्ड मैन वापस आता है, बाहर आता है बैरल के पीछे से जो छुपा हुआ था। तो वो समझ जाता है कि सार्जेंट ने मुझे पकड़ा नहीं पर मुझे बचाया, और ये इसको विग दे देता है, हैट देता है, और बोलता है कि तुम अपने रेस्क्यू बोट में चले जाओ, भाग जाओ, उसको अलाउ करता है। तो दैट रैग्ड मैन बिकम्स वेरी हैप्पी, बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी हेल्प की। जब भी आयरलैंड फ्री हो जाएगा, आयरिश फ्री हो जाएंगे ब्रिटिशर्स से, तो मैं ज़रूर तुम्हारा जो ये एहसान है याद रखूँगा और तुमको रीपे करूँगा। वॉट एवर हेल्प यू हैव गिवन इट टू मी, आई विल रीपे यू आफ्टर आवर लैंड इज़ फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिशर्स। कैसे न कैसे तुमको रीपे करूँगा, बहुत ही हूँ। तो लाइक वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इसके माइंड में पहले क्या था, मुझे रिवॉर्ड मिले और मुझे प्रमोशन मिले, बट बाद में जब भी पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी वो पैट्रियोटिज़म आ गई, और उसको लगा कि नहीं, ये सही बात है। जो उसने वर्ड्स भी बोले कि अभी मून स्काई में है, देयर इज़ मून इन द स्काई, तो इतनी डार्क नाइट है, बट बिकॉज द मून हैज़ रिजन इट गिव सम लाइट। तो अगर हम लोग भी ऐसे सोचें कि हमारे कंट्री पे ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया है, दे हैव कैप्चर्ड आवर लैंड, सो लाइक अ मून इज़ गिविंग पॉजिटिव होप इवन इन द डार्क नाइट। जैसे मून पॉजिटिव रे ऑफ होप देता है, तो वैसे ही हम भी अगर पॉजिटिव रे ऑफ होप को अपने माइंड के अंदर जाने दें तो शायद हम आयरलैंड को ब्रिटिशर्स से फ्री कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे मन में भी वो पैट्रियोटिज़म आई, तो ऐसे ही अगर हर किसी आयरिश मैन के अंदर राइजिंग मून के जैसे वो माइंड में पॉजिटिव रे आता है, तो शायद हम ईज़िली आयरलैंड को फ्री करा सकते हैं। तो इसके भी माइंड में वो पैट्रियोटिज़म आ गई और इसने इसको अलाउ किया, एंड ही गोज़ अवे। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द ड्रामा राइजिंग ऑफ द मून। I hope you would have understood and enjoyed this video. If you want more videos on English grammar, writing skill, other literature, etc., you can visit my YouTube channel Learn with BS. Thank you once again.